मसौदे कानून पेश किया गया है। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to amend and consolidate the laws relating to regulation of employment and other conditions of service of workers employed in shops and establishments and for matters connected therewith or incidental thereto. LA Bill number 6 of 2025, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मसौदे कानून पेश किए गए। जनाब जावेद अहमद डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर। Arise with amend the Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act 1989, Act number 26 of 1989, and Bill number 7 of 2025, already published in the extraordinary issue of the Official Gazette. मसौदे कानून पेश किया गया। Private members resolutions। जनाब निजामुद्दीन भट्ट साहब। Sir, I write to you, this House unanimously resolves to impress upon government to initiate process of establishing the Jammu and Kashmir National Law University at Srinagar without any further delay, and the funds earmarked for the first phase have already been provided. गणाधार पेश हुई कि ये ऐवान मुतफिका तौर हुकूमत पर जोर देता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को श्रीनगर के मुकाम पर कायम करने के अमल को बगैर ताखीर शुरू किया जाए, जैसा कि इसके अवलीन मरहले के लिए मुक़द्दस हुकूम पहले ही फराहम किए थे। इस सिलसिले में जनाब हिलाल अकबर लोगों की तरफ से तरागीब मौसूल हुई है, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तसल्लुत करता हूँ। आपको तो करने की जरूरत नहीं। अब करारदाद और तहरीक तरमीम ऐवान के सामने है, इन पर आप बैक वक्त बहस होगी, तो जनाबी निजामुद्दीन भट्ट साहब बहस का आगाज करेंगे। Honorable Speaker, sir, it's heartening to know that government has already acknowledged the need and has taken an initiative too. I will recall that in the first budget speech of 2025, Honorable Chief Minister and his government in para 144 had provided our government is committed to establishing a national law university in Jammu and Kashmir to drive legal education reform and research with world-class training allied to contemporary standards. The NLU will empower future legal professionals and enhance justice delivery. I propose provision of rupees 50 crore budget for this transformation initiative. तो इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि जरूरत को महसूस भी किया गया और पहला कदम जरूरी होता है वो भी लिया गया। लेकिन डिले हुई एक साल। जो मुझे इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये प्रपोजल हायर एजुकेशन की तरफ से पहले लॉ की ओपिनियन के लिए। I don't know how far because I have not seen the papers. The information I have been able to gather, the veracity of information depends on the authority themselves to see whether it's right or wrong. So, law department ने clearance दे दी, लेकिन जो सेंट्रल स्टैट्यूट है, उसकी वार्ड्स के मुताबिक इस प्रपोजल को हाई कोर्ट को रेफर किया गया। और हाई कोर्ट से दो इश्यूज अवार्ड आना बाकी, एक द टोटल अमाउंट, दूसरा द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। सर, इसमें मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर यही चीज है इन द प्रोसेस एंड इज पेंडिंग विद ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो अवार्ड को एक्सपेडिशियसली कॉल करने की जरूरत है ताकि जो इनिशिएटिव लिया गया है वो एग्जीक्यूट हो पाए। इसमें शायद तीसरा इशू लैंड का भी आएगा।
उस हवाले से जो हिलाल अकबर रोड साहब, लेकिन लोकेशन इज आइडेंटिटी सेंटर, the university is at UG level. It could be there in Jammu, it could be here in Srinagar. लेकिन कुछ एरियाज हायर एजुकेशन अनअटेंडेड है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, कहीं यूनिवर्सिटीज की शाखाएं हैं, कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेंटर्स हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम लॉ का आता है तो वन नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सो फार, deprived district, and we should provide land to this district body. इसका हिलाल अकबर रोड साहब ने एमेंडमेंट में जिक्र किया। This would be my ardent desire, as well as a profound request to Honorable Chief Minister, also this House, that they pass the resolution and also with location and bonding। इसके लिए मैं दो तीन चीजें और कहना चाहूंगा इन डिफेंस ऑफ दी अर्जेंट नीड्स। देखिए सर, ग्लोबल लेवल पे आज तक जो पहली जरूरत है गवर्नेंस की या सिटीजन्स के प्रोटेक्शन, वो है लॉ, जुडिशियल सिस्टम। उसके लिए जरूरी है जो डेवलपिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, रिसर्च है, रिफॉर्मेशन है, उसको उसकी पेस के साथ जाने की जरूरत है। हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं, और यहाँ जो इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबल लेवल पे किसी भी एडवांस कंट्री के साथ मिलता जुलता है। एक कोना रह गया है मुल्क का, दिस स्टेट, this deprived state has many deprived situations. That's something else, a question to be, a debate to be taken up at appropriate time. लेकिन ये एक इंतहाई जरूरी एरिया है जिसकी तरफ इस साउथ हाउस को तवज्जो देने की जरूरत है। एंड दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। ये सिर्फ प्रोफेशनल्स को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को एक फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशन देने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जो एस्पिरेंट्स है इसमें जाने के लिए उनको ब्रॉडर स्पेस जो ग्लोबल लेवल पे है वो मुहैया करने की जरूरत है। और ये भी जरूरी है कि दिस इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड, दिस एज अ लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, एनी लेजिस्लेचर इन इंडिया एंड दिस इन पर्टिकुलर will be benefited. Perhaps we may get better people who understand how to make laws and what are the laws that suffice or that are conducive to society, or what are the laws that fulfill the constitutional commandments। इन चीजों की, सब चीजों की जरूरत पूरी हो सकती है। मेरी विनती रहेगी इस हाउस से, across the political lines, this is in the interest of all, this will be the institution of a country and of our region जो हमें बेनिफिट कर सकता है। इसको पास करने की विनती कर रहा हूँ। With these words I conclude। पठाइए सर। एक अहम मुद्दे पे रेजोल्यूशन हमारे मित्र निजामुद्दीन भाई साहब आए। इंडिया में जो लीगल सिस्टम 1984 से पहले तो लॉ की डिग्री है वो जनरल यूनिवर्सिटीज में होता है। मान लीजिए कश्मीर यूनिवर्सिटी तो लॉ के पास है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो लॉ के पास है, जम्मू यूनिवर्सिटी है लॉ के पास है। लेकिन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 1984 में आई और 1984 से लेकर अभी तक 28 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंट्री में है जो स्पेशलाइज्ड एक ही काम करते हैं, जैसे लॉ रिलेटेड की, जिसमें बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा और पीएचडी भी ऑफर करती है। और ये तफसीलन जम्मू कश्मीर की बड़ी देर से मांग रही थी, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 28 देश भर में जो मिली है। रेजोल्यूशन में जो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने लकी में आपने मुझे मौका दी तो बताऊं, जम्मू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में जहाँ मैंने पास किया, एक से जनरल यूनिवर्सिटी और स्पेशलाइज्ड लॉ यूनिवर्सिटी, और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर है वहाँ पर जाना थी, मैं इलाहाबाद में लेके तो दोनों जगह मुझे जाने का मौका मिला। तो ये जम्मू कश्मीर में खुलनी ही चाहिए और उसका प्रोविजन। बट
मेरा स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है कि वाइट मेंशन श्रीनगर में बांधे ये हाउस का काम नहीं डिसाइड करना, ये पॉलिटिकल पीपल हमारा काम करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भारत सरकार तय करती है और हम उस मैं नहीं कर रहा जितना हमारा जम्मू श्रीनगर मिलता है मैं और उतना बालीपुर भी हमारा नहीं, बट वी शुड मेंशन दिस जिससे कोई और एक किसी और तरीके का मैसेज है। मेरा मानना है कि दिस अमाउंट सुन रहे आप बोल रहे बोले एक बात बोले मैं आपको बता दूं कि as per the rules of procedure, as per this practice and that convention also, this amounts to legislative overreach. हम एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करें कि वो पुलवामा या उधर वो पुंछ में जो मेरे भाई बने इतना नहीं बनेंगे यूनिवर्सिटी खोले, लेकिन मैं नहीं कह रहा I am not opposing श्रीनगर नागपुर, ना मेरी तरफ से कोई अपोज कर रहा है। I am not opposing बालीपुर नागपुर। भारत सरकार इसमें जल्द से जल्द काम करे और मैं कह रहा हूँ हमें पूरा फेथ है यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। एंड वन मोर पॉइंट सर, ये आपको बता दूं कि मैं 84 का टेक्नोलॉजी का आपको बताऊं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो मेजर पार्टनर। पहले जो यूनिवर्सिटी बीडीसी नॉर्म्स के साथ चलती थी उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई पार्ट नहीं था। इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो 28 की अकेडमी आया था, मैंने कहा आपको फिर भी वहां पे आना चाह रहा था, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपसे मेजर पार्टनर इस किस्म का अगर रेजोल्यूशन अडॉप्ट करें कि पर्टिकुलर एरिया को लेके they should not send a positive note. So there are our submission है keeping in view the grievances and exigency of the time and place, keeping in view the recommendations of the Department of Education, यहाँ वाला भी दिल्ली वाला भी, keeping in view हमारा वाला लॉ डिपार्टमेंट और भारत सरकार वाला भी, और ओवरआर्चिंग रोल क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा इनका फोकस है, इनका स्टेट और इनका कंट्रोल उसमें रहता है। तो मेरा रिकमेंड आपसे अनुरोध है, वी आर नॉट अपोजिंग इट, लेकिन इसकी लोकेशन का मुझे एक थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूंगा मुझे ऑब्जेक्शन है, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक ये खदशात है, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन है, एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ डिसेंट है। आई एम होपफुल इस डिसेंट को पॉजिटिव सेंस में दिखाऊं। ये सैफुल्लाह साहब। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर की जो रेजोल्यूशन है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी श्रीनगर में कायम होनी चाहिए, इसके फेवर में खड़ा हुआ। मैं इसलिए चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के एक तो ये जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, जनाब मुरुब्बा साहब की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया और बहुत ही आम फैसला ये लिया कि यहाँ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम होना चाहिए। इसको सबने अप्रिशिएट किया, सिर्फ हाउस के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छा स्टेप है और नॉवल स्टेप है, और जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में उनके फायदे हैं, क्योंकि अब आप कश्मीर की बात करें या श्रीनगर की बात करें, इसकी एक जस्टिफिकेशन बनती है। जस्टिफिकेशन ये है कि कश्मीर जो है, कश्मीर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ में जाना चाहते हैं, वो बिजनेस में जाना चाहते हैं या मास्टर्स में जाना चाहते हैं या डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, कश्मीर से बाहर जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दिल्ली जाने में, चाहे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में जाने में, दूसरा कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है। ये दोनों सूरतों में प्रॉपर कश्मीर प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बनता है कि अगर ये यूनिवर्सिटी कायम हो जाए तो श्रीनगर के अंदर ही होनी चाहिए। अब हम जम्मू की बात कर रहे थे, तो जम्मू में एक फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को, वो अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, रात को भी निकल सकते हैं, दिन को भी निकल सकते हैं। दिल्ली जाना चाहे, बेंगलोर जाना चाहे, मुंबई जाना चाहे, जहां जिस स्टेट में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ वो अभी फैसिलिटी यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं है कि बाहर जाके पढ़े। इसलिए जो निजामुद्दीन साहब ने ये रेजोल्यूशन जारी है कि इस यूनिवर्सिटी को कश्मीर के अंदर यानी श्रीनगर के अंदर ही कायम कर दीजिए, इसकी एक जस्टिफिकेशन बनती है, इसकी एक जवाजियत बनती है। जवाजियत ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को एज कम्पेयर टू जम्मू के स्टूडेंट्स से कम फैसिलिटीज है पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए। इसलिए इसके साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि इस पे पूरी तौर से अमल किया जाए। सही बात, 1 साल गुजर गया, 1 साल में अभी नहीं लग रहा है कोई
कोई ऐसा स्टेप लिया गया है कि लगता है कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी कायम हो। मैं भी चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, ये बहुत अच्छा कदम जिसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों, यहाँ के स्टूडेंट्स के हक में है, उनकी फैसिलिटी के लिए, उनकी एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाने के लिए। मैं भी चाहता हूँ एक तो पूरी तरह से इस यूनिवर्सिटी को कायम किया जाए, और अगर किया जाए तो सिर्फ श्रीनगर के अंदर, ताकि क्योंकि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा जरूरत है इस यूनिवर्सिटी के लिए। Honorable Speaker, sir, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का मौका दिया। मैं यहाँ पे सिराजुद्दीन साहब के जो रेजोल्यूशन जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई स्पोर्ट मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जहाँ पे हमारे हजारों बच्चे जो लाभ सीखना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, जो उस तालीम को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें बैरूनी जासूस में या बैरूनी ममालिक में जाके तालीम हासिल करना पड़ती थी, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल एक काम है। और दूसरा, जिस तरह से इस वक्त का माहौल पूरे मुल्क में, तो मैं मीर सैफुल्लाह साहब की इस बात को नहीं समझता कि बहुत मुश्किल है यहाँ से बाहर जाना। ये इदारा कायम करना ही नहीं है, बल्कि ये जिस तरह से हम सड़कें बनाते हैं रोड्स को कनेक्ट करने के लिए, ये उन फ्रजाइल माइंड्स को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं ऑनरेबल चीफ साहब का बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने ये अपने दौरे हुकूमत में इसको इनिशिएट किया, और मैं ये समझता हूँ कि समाज में कानून जानना और कानून सिखाया जाता है, या कानून की जिनको अवेयरनेस होती है, वही जो समाज है वो एक जस्टिस डिलीवर करता और एक तहजीब याफ्ता कौम बनती है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे अभी बात हुई कि इसको लोकेशन का क्वेश्चन के बारे में जो बात हुई, ये रियासत में किसी भी जगह बने, और मैं तो ये कहूँगा श्रीनगर और जम्मू के बीच में प्रपोज करूंगा किसी जगह में साथ में बीच में बना दिया जाए, ताकि दोनों रीजन और उसके आ गई आपकी बात, आ गई सरदार नरेंद्र सिंह जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये रेगुलेशन अच्छा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। और जैसे पठानिया साहब ने कहा कि एरिया जस्ट लोकेशन स्पेसिफिक रेगुलेशन जेएंड के स्टेट में होना चाहिए। और एक साथी हमारे बोल रहे थे यहाँ जम्मू या कश्मीर के बच्चों को फायदा होगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन रहती है वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। वो कोई रीजन जम्मू या कश्मीर के बच्चों को एडमिशन ही मिलेगी। जो नेशनल लेवल का टेस्ट होगा उसमें पूरे नेशनल लेवल के बच्चे कंपटीशन करेंगे, उसके बाद उनको एडमिशन मिलेगा। अच्छा रेगुलेशन है, इसकी सपोर्ट करता हूँ। एरिया के लोकेशन है, ऐसा वर्ड इसमें नहीं होना चाहिए। एक मैं छोटी सी इसके अलावा एक सेकंड सिचुएशन, मैं सीएम साहब से पहले भी एक बार कहा था, अभी हाउस में सजेशन देता हूँ कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लाओ स्टेट। आप देखेंगे कि आपके स्टेट पंजाब में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चे हैं, जिसमें से 32,000 बच्चे जम्मू कश्मीर के। लवली यूनिवर्सिटी में 60,000 बच्चे हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे जम्मू कश्मीर के। और हमारे बच्चे के मेडिकल कॉलेज गंगानगर में पार्टी यूनिवर्सिटी, लास्ट ईयर में वहां गया था, वहां जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे थे वहां, क्या हम नहीं ला सकते अपनी स्टेट में? उसमें रोजगार भी आएगा, बच्चों को मौका भी मिलेगा और स्टेट की डेवलपमेंट भी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये रेजोल्यूशन जो साहब की तरफ से लाई गई है,
जैसे अब मेरे साथी कह रहे थे, सही फरमाया उन्होंने कि हजारों बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग पे हो, चाहे वो MBBS के लिए हो, चाहे वो लॉ, और हमारा जितना भी पैसा है वो बाहर जाता है। हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देनी चाहिए और ये एक अच्छी सजेशन है। जहां तक हमने बहुत किया जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मண்ட் करके हमने यहाँ इतना बांटा है लोगों को आपस में, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ इस तरह को। जब IIT बनी, IIM बने यहाँ, तो जम्मू में 2 चीजें बनी, IIM, IIT। कश्मीर में सिर्फ एक ही बनी, लेकिन कभी हमने ये नहीं चलाया ना, यहाँ कुछ नहीं बना, हमने कभी नहीं चलाया। एक सेकंड यार, बात करने दो। आप क्यों बोलते हो? यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं बना, लेकिन कभी कश्मीरियों ने ये नहीं चलाया, कश्मीर के लोगों ने जम्मू में 2 चीजें बन रही, कश्मीर में क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ये रियासत है, रियासत से इन विचारों ने आपको ला के यूटी बनाया है, यूटी में पहुंचाया, पता नहीं। तो हमें अप्रिसिएशन देनी चाहिए, जम्मू में बन रहा है या कश्मीर में बन रहा है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में कोई चीज बन रही है। इसको ये कहना कि श्रीनगर में क्यों बनेगा, श्रीनगर में इसलिए बनना चाहिए, जैसे मेरे साथी ने कहा यहाँ जखला मीर साहब ने, कि अभी सड़क बंद हो गई तो 20 दिन 25 दिन हमारा फ्रूट बाहर नहीं जा सकता। अभी हम एक रोड नहीं बना सके कि जम्मू और कश्मीर को मिला सके, और इससे ये साबित होता है कि यहाँ के बच्चों को दुश्वारी आ है, जो बाहर जाके अभी कोई मामला हो जाता है तो पूरे मुल्क में हम परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, कश्मीरी बच्चों के साथ। तो बेटर है, ये एक अच्छी तजवीज है निजामुद्दीन भट्ट साहब की, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये श्रीनगर में बननी चाहिए, और जम्मू के बच्चे भी हम यहाँ आके पढ़े, उसमें कोई आगे आगे बता दें। हाँ शिवकुमार जी, शुक्रिया सर। जो यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर निजामुद्दीन साहब ने रेजोल्यूशन लाया, मैं इसके हक में खड़ी हूँ। सर बात यह है कि मुझे याद है जो यहाँ के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, बहुत ही यहाँ के लोगों की मुश्किलात है, मुसीबतें हैं, और उनके जो घर वाले हैं वो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि उनका जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, एक तो सफर खर्चा होता है और वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो फी वगैरह होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि लेबर लॉ में कोई जाना चाहता है, स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, बहुत सारे लॉज हैं ऐसे जिनमें वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने घरवालों की वजह से या उनके जो इन्यूज बहुत ही कम होते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो रह जाते हैं। हमें याद है जब यहाँ पर हालात खराब हो गए, यहाँ कितने 3 महीनों के लिए इंटरनेट बंद रहा, फोन बंद रहा, एग्जाम के लिए लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे वो पॉसिबल नहीं था। अगर कोई बहुत सारे लोग बच्चों का इंजीनियरिंग एग्जाम भी चल रहे थे मगर वो रह गए, वो अटेंड नहीं कर सके। इसलिए ये मौजू है और मुनासिब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, ये जो श्रीनगर है ये हॉट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर है, नोटेबल कि जम्मू भी एक ऐसी जगह है, वहां भी होना चाहिए। लेकिन जो अगर कश्मीर के जो सारे बच्चे हैं यहाँ पे खास कर जो लॉज में बहुत सारे सब्जेक्ट है वो रह गए हैं, यहाँ के स्टूडेंट उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उनको एक मौका फराहम होगा और वो यहाँ जाके जब उनका जैसे कश्मीर में बहुत सारी जगह दूर दराज इलाके हैं, जम्मू के इलाका एरियाज है, वो यहाँ आकर वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं भी इस फेवर में खड़ी हूँ कि यहाँ पे श्रीनगर इसके लिए मौजूद जगह है क्योंकि बहुत ही नजदीक है और ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इंटरनेट बंद होगा फिर भी वो यहाँ आ सकते हैं और अपनी जो स्टडीज है वो पाई कर सकते हैं। आप खुले साहब 2 मिनट अब ज्यादा गुंजाइश रही नहीं इसमें, मेरे ख्याल में बातें सब आ गई है, अब रेपुटेशन नहीं हो रहा है, क्या फायदा है जब बाकी रेजोल्यूशन रहेंगे।
बाकी लैंड हो जाएगी। अगर एक ही में आप फंस के बाकी तो रह जाएंगे। और बोलिए ना हाँ बोलिए। हम वेलकम करते हैं कि जो सीएम साहब का जो प्रपोजल है कि एजुकेशन लॉ होनी चाहिए, लेकिन हम जो एक्चुअल इसका जो प्रोग्रेस है और इसका जो पर्पस है वो हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये जो लॉ यूनिवर्सिटी होते हैं, अन्य लॉ यूनिवर्सिटियां जो होती है, ये इसमें एग्जाम्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारा बच्चा कश्मीर में नहीं पढ़ पाता या उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसमें प्रॉपर जो और टेस्ट होगा, उसके बाद जो ग्रेड के हिसाब से वो जो कॉलेज होते हैं उनके ग्रेड के हिसाब से फिर अलॉटमेंट होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो लॉ कॉलेज है वो तो उसमें जम्मू कश्मीर के सब बच्चे पढ़ेंगे, उनको आगे नहीं। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसका एक स्टैंडर्ड है नेशनल यूनिवर्सिटी का जो सामने जो प्रपोजल दिया है, उसमें ये नहीं है कि हमारे बच्चे होने चाहिए। उसमें ये है इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना चाहिए और हमारे बच्चे उसमें आएंगे और अगर उनकी सिलेक्शन होंगे तो उसमें उसी हिसाब से आएगा जितना ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में होता है। तो मैं इस फेवर में हूँ कि हाँ ठीक है, आपने जो प्रपोजल रखा है कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में सेंट्रल जगह है तो उसमें होना चाहिए। देखिए बच्चे ये जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे इसमें आ जाएंगे, पहले नहीं। उसमें जब तक कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं होगा, उसका ऑल इंडिया लेवल पे जो कैटेगरी आएगी उसके हिसाब से हमारा होता है। इस तरह से वो बात की बात नहीं। हाँ आप सब बोले क्या बोलना चाहते हैं, अब कब दिल बन गए? ये खाली मौका ही नहीं है और कुछ भी कैसा तो पहले जनाब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बड़ी सरकार का शुक्रिया और इसके साथ साथ सर काफी सारे कश्मीर में होना चाहिए, इसमें बोला है खड़ा हुआ है। जैसे सजाद शाही ने कहा इसमें कश्मीर में बानियाल भी आता है, रामनाथ भी आता है, लॉट ऑफ फिर आप चाची बोलेंगे मैं पैराग्राफ आज आपके दोनों का कह रहा हूँ इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड दैट साउथ कश्मीर में अगर इसको आप ले जाएंगे। मैं आजमन ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इट शुड बी इन साउथ कश्मीर की सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है जो आज इसीलिए है दैट में बिजगाना साहब मुझे पूछने की कोई इन्होंने अमेंडमेंट नहीं दिया। So I'm thankful to Mr. Nizam Parsah for the resolution in the House, and I think no member would be averse to establishing the university in the Srinagar. So I have brought the amendment to the resolution. मेरा ये है कहना है कि जो पांडीपुरा में है, डिस्ट्रिक्ट पांडीपुरा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक गुरेज है, एक पांडीपुरा है और एक सोनावारी का जो हमारा एरिया है वो यहाँ से 15 किलोमीटर जाके ही शुरू होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि पांडीपुरा यहाँ से दूर है, हो सकता है कि कई लोगों को एतराज होगा, लेकिन सोनावारी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और अगर आप देख लेंगे तो यहाँ से हाईकोर्ट जो बन रहा है, जो नई बिल्डिंग जो बन रही है कंस्ट्रक्शन है, वो है बहुत शार्टेक से लेकर 5-6 किलोमीटर से सोनावारी शुरू होता है। तो लोकेशन के हिसाब से मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी वायबल प्लेस, appropriate place for establishing this national college in Sonawari area. So मेरे ख्याल से सुना देखिए एक मिनट सर। दूसरी बात ये है कि ये जो कंजेस्टेड एरियाज है, जैसे आप जानीपुर का वो हाईकोर्ट देखेंगे जो सेंट्रली लोकेट का वहाँ सिटी में था, उसको भी लोकेट किया गया, उसको भी शिफ्ट किया जानीपुरा, वो भी 15 किलोमीटर दूर है वहां से जहाँ पहले ये था। सो कोई भी शख्स मुझे ये बताए अगर यहाँ से जाके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एक बात चल रही थी कि इसको भी सिविल सेक्टर के ऊपर यहाँ पूरा ले जाया जाएगा, वो भी यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, तो कौन सी आफत आएगी अगर ये सोनावारी में बन जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि लोकेशन, ये मुझे कह रहे थे मेरे साहब कि उन्होंने लोकेशन कैन नॉट बी ब्रॉट इन दिस, लोकेशन कैन नॉट बी दिस मेंशन, देयर इज नो रूल इन द बुक्स दैट व्हिच bars us for mentioning लोकेशन। तो इसलिए रेजोल्यूशन आया है पांडीपुरा में एस्टैब्लिश होना चाहिए। मैं पांडीपुरा के साथ साथ ये कह रहा हूँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे नजदीक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ श्रीनगर से सोनावारी पड़ती है सर, सिर्फ 15 किलोमीटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से दूर है, तो कंजेशन भी नहीं है
लैंड भी अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि ये सराबारी में ये बने साउली में। 2 मिनट बस, और बाकी रेजोल्यूशन आए हो जाएंगे। सर मैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, बड़ा अच्छा इन्होंने सोच बनाई और कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, तमाम मेंबर हजरात ने यहाँ बात की। मेरी इस हाउस से आपसे गुजारिश है कि जो आपका लोकेशन का सिलेक्शन है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा बॉर्डर एरिया जो पीर पंजाल है उसको ये दरियाने तक आने लगा। मेरी सर ये गुजारिश ये है, सर हर मुश्किलात जो आती है वो हमारे मुल्क से आती है। आज पिछली गवर्नमेंट जो बनी उससे पहले भी जो जहाज आते हैं वहाँ गिराते हैं, जो मुश्किलात आती है वहाँ। तो एक अगर बेहतरीन एक तोहफा पूछ के लिए चला जाए, रजौरी पूछ के लोग पीर पंजाल में कहीं मेरी एक गुजारिश है कि वहाँ बने। कहने दो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आप मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल आप मिनिस्टर, अच्छा रेस्पॉन्डिंग। सॉरी स्पीकर साहब, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन में रहे कि हायर एजुकेशन जवाब दें या लॉ डिपार्टमेंट जवाब दें, तो आखिरकार हम इस नतीजे पे आए कि नहीं जवाब दे देता हूँ। मेरे पास स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर में तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ये हम सब की ख्वाहिश है और हम सब की कोशिश की रही। कहा एक वक्त ऐसा जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही यूनिवर्सिटी, फिर उस यूनिवर्सिटी के 2 ब्रांच, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना तो एक ही पहले कश्मीर में। फिर इस चीज को देखते हुए कि जम्मू में भी स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एजुकेशन की जरूरत है, स्कॉस जम्मू का वहां पे खुला है। मेडिकल कॉलेजेस जहां सिर्फ श्रीनगर या जम्मू, आज देखें तो दूर दराज इलाकों में मेडिकल कॉलेज या तो खुलने जा रहे हैं या खुले हैं। टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, NIIT, फैशन ट्रेनिंग के लिए नेटवर्क लिस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। हाल ही में मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए IIT, IIM, अब मैं इस झगड़े में पढ़ूंगा ही नहीं कि कहां लगे जम्मू कश्मीर में, छोड़ दीजिए। वेरी गुड नहीं, वो हमारा बड़ापन है ना, तो छोड़ दीजिए अब। लेकिन मैं इतना मैं अपने साथियों को जरूर याद दिलाऊंगा कि एक वक्त ऐसा था जब हमें भी इस तरह का फैसला करना था। मरकज की हुकूमत, यूपीए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक IIM, और ये कहा गया कि आप तय कर दीजिए कि ये कहां लगेंगे। और वो फैसला हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि IIM ने यहाँ लोगों ने IIM के बारे में यहाँ कम ही सुना था, यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानते थे। तो हर तरफ से जब बात आई तो ये कहा जनाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ लगनी चाहिए, IIM का कोई जिक्र नहीं करता था। और मुझे मालूम था कि अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम जम्मू में लगाएंगे तो कश्मीर में कहेंगे ना हमारे साथ नाइंसाफी हुई, कश्मीर में हम लगाएंगे तो वैसे भी जम्मू को ये चीज बेचने में टाइम नहीं लगता कि कश्मीर वाले सारा कुछ खा जाते हैं। तो मैं खुद जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से मिला, मैंने उनसे कहा आप हमें इस मुसीबत में मत डालिए, या तो आप तय करिए कहां जाना है, फिर ठीक है फैसला हमारे हाथ में है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप डिसाइड करिए कहाँ लगाना है, हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें तय करना है तो फिर हमें इस मुसीबत में मत डालिए। आप एक IIM और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजाय हमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दे दीजिए। हालांकि वो और किसी रियासत में इस तरह का प्रोविजन नहीं था, लेकिन उस वक्त उनका बड़ापन, उन्होंने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां दी। हमने जम्मू के साथ भी इंसाफ किया, कश्मीर के साथ भी इंसाफ किया। अब बात आती है लॉ यूनिवर्सिटीज की। अब मजाक के तौर पे ठीक है, अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे भी खुलना चाहिए, यहाँ पे भी खुलना चाहिए। मांगने का हक हर किसी को है। मेरे साथी अल्ताफ कह रहे थे मैं क्यों ना अनंतनाग के लिए मांगू, मैंने कहा मांगिए, कौन रोक सकता है? आप जहां मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। मुझे पता था जब गुरेजी साहब का हाथ ऊपर गया तो गुरेज की तरफ यूनिवर्सिटी को लेने का काम होगा। अब वो कहना भूल गए, लेकिन इशारतन इनके इशारे ही काफी है ना, इशारतन पता चल गया। सोच समझ के इसका हम फैसला करेंगे कहाँ लगेगा। और जैसे मनकोटिया साहब ने हमें याद दिलाया, इसमें बहुत से पहलू हैं। ये अकेले मतलब बनाना तो हमने है, पैसा भी हमारा ही लगेगा, लेकिन इसमें औरों का रोल है, उससे इनकार कौन कर सकता है। मेरी कई मर्तबा ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट के, उनके साथ टेलीफोन पे इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुतालिक बातचीत हुई है। यहाँ तक के आने वाले कुछ दिनों में हम दोनों का इरादा है कि मिल बैठ के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और मैं अपने साथियों के साथ लॉ सेक्रेटरी वगैरह इसको और ज्यादा इस प्रपोजल का आगे लेने के लिए क्या करना चाहिए वो हम कर लेंगे। सही कहा इन्होंने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इसमें रोल बनता है। लेकिन जहां तक मैंने इससे पहले, जो ये पहली लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है जो कायम की जा रही है, इससे पहले भी बने हैं। जो मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे और मालूम किया है, कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है बाहर से किसी स्टेट या टेरिटरी को डिक्टेशन आया कि आप यहाँ खोलो, यहाँ मत खोलो। आमतौर पे उस टेरिटरी या उस स्टेट की हुकूमत को इस बात की इजाजत दी गई है कि कहाँ लगना चाहिए। तो सही मौके पे इस ये फैसला हम कर लेंगे। लेकिन वैसे भी फौरी तौर कैंपस बनना नहीं है, कैंपस बनते हुए बहुत वक्त लगता है। अभी भी हमारी यूनिवर्सिटियों की कैंपसेस जो है वो बनाई जा रही है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है तो पहले, क्योंकि हमारा इरादा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाए और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे नजर में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है, तो शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बड़गाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था और वहां पे एयरफोर्स की हमें इजाजत मिली नहीं, क्योंकि वहां पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फर्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बड़गाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो एस्टैब्लिश करना शुरू कर लेंगे। अब यहाँ सैफुल अमीर साहब ने और शुरू में ही निजामुद्दीन भट्ट साहब ने शायद ये कहा कि इसमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। अंदर सेक्रेटेरिएट में काम चलता है, उसका रोज रोज हवाला जो है बाहर मीडिया के जरिए बताया नहीं जाता। अब हर मीटिंग का अगर हम आपको बताना शुरू करें तो आप थक जाओगे सुनते सुनते ना कि रोज सेक्रेटेरिएट में कितनी मीटिंग हो रही। लेकिन बजट स्पीच में ये ऐलान होने के बाद फौरी तौर सीनियर अफसरों की कमेटी बनी
कमेटी जो है वो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शांतनु जी वो उसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने इसमें मीटिंगों का प्रोसेस शुरू किया है। बाकी स्टेट्स की एक्सपीरियंसेस क्या रही, बाकी स्टेट्स ने क्या किया, वो जानकारी ली गई है। हमें क्या करना होगा वो सारा तय है। हमें कौन से इसमें कौन सी नोटिफिकेशंस जारी करनी होंगी उनका भी सारा जो है एक खाता खींचा गया है, एक ढांचा तैयार है, वो की जाएंगी। और जैसे मैंने कहा पैसा जो इनिशियल आउटले 50 करोड़ का वो तो बजट में रखा ही गया है। तो शुरुआत हमने की, जैसे मैंने कहा हमारा इरादा है और ऊपर वाला साथ दे और बाकी जिनके साथ हमें मिलकर काम करना है उनका ठीक ठाक कोऑपरेशन रहे। तो मैं अभी भी मानता हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के महीने में ये मुश्किल नहीं होगा। हम कम से कम क्लासेस जो है वो शुरू कर पाएंगे रेंटेड अकोमोडेशन में और हमारी यूनिवर्सिटी चल जाएगी। लेकिन ये सही है कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये सिर्फ उस जगह के लिए नहीं है जहां पे ये लग जाता है, लेकिन लगने से वहां के बच्चों को फायदा जरूर होता है। अब जैसे IIT IIM लगे ये नगरोटा में, लेकिन वहां उसके एक्ट में स्टैट्यूट में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वहीं के बच्चे पढ़े। लेकिन वहां IIT IIM लगने से जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उस फील्ड की तरफ बच्चों का ध्यान ज्यादा गया है। जो लोग पहले ही IIT IIM में जाना पसंद करते थे उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है फिर घर के करीब रहना। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुले, बेशक बच्चे जो हैं वो नेशनल कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है वही पास करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करेंगे। लेकिन वैसे भी हमारे बच्चे ये टेस्ट लेते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे दूसरे लॉ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी उनको इस चीज का हम मौका ही नहीं देते कि वो जम्मू कश्मीर में ये तालीम हासिल करें। ये यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में खुले तो जो बच्चे आज मजबूरन जम्मू कश्मीर के बाहर जाके इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो जम्मू कश्मीर में ही ये तालीम हासिल कर पाएंगे। लेकिन मैं हाउस को अश्योर करता हूँ कि ये सिर्फ कागजी ऐलान नहीं था। ऐलान करने के बाद हम भूले नहीं, हम बाज़ाब्ता इस पे अपना काम जारी रख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है हम इसको अपनी जामा पहनाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो मैं तो आपका तो चलिए ना, तो फिर मेरा काम हो गया। मैंने इस रेजोल्यूशन के हवाले से तमाम फैक्ट्स जो है हाउस के सामने रखे। थैंक यू। तो इस सिलसिले में हमें रेजोल्यूशन पर भी वोट देना है और अमेंडमेंट पर भी देना। अमेंडमेंट पर पहले दे दें। अमेंडमेंट जलाल अकबर लोग साहब ने दी थी कि उसको बाइंडिंग फोरम किया जाए। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर जनाब जलाल अकबर लोगों की पैरवी के हक में वो आप कहें अच्छा यार विद्राई ओके दैट्स ओके, फिर वोट लेने की जरूरत नहीं है। अब करारदाद पर हम वोट ले लेंगे। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबरान इस करारदाद के हक में, अच्छा आप मुझे बताइए निजामुद्दीन भट्ट साहब, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तफसीलन जवाब दे दिया, आप मुतमईन है उससे? फुली सेटिस्फाइड। लेकिन एक चीज है, if we don't put it to vote, that means we are doing it against our own act. Against our own act। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस रेजोल्यूशन को हाउस के सामने वोट के लिए पेश किया जाए। We have no objection now. We are in favor of establishing the National Law University. There is nothing in this resolution that we see the need to oppose. आप रख दीजिए वोट के लिए ना, हम इसके हक में वोट डालेंगे। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर इस करारदाद के हक में हूं वो हाँ कहे। यहां से तो आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, जो इस करारदाद के खिलाफ हैं वो ना कहे, नाम भी कोई नहीं, तो करारदाद मंजूर हो गई। डॉक्टर सईद बशीर अहमद गिरी साहब, आपका करारदाद शुरू करें। जी सर। This House resolves that in view of lack of opportunity for employment in private sector, generation of employment avenues in public and private sector, like other states of Union of India, be explored and acknowledge business opportunities be advertised by the government. बोले Thank you. करारदाद पेश की है। ये ऐवान करार देता है जम्मू कश्मीर में विभाग के की लीडर रियासतों की तरह निजी शोबे में रोजगार के कम मौके के पेश नजर अवामी व निजी शोबों में रोजगार के नए जराये तलाश किए जाए और हुकूमत की जानिब से ज़राअत पर मुबैनी कार्रवाई मौके की कफालत की जाए। अब करारदाद ऐवान के सामने है। डॉक्टर सईद बशीर अहमद गिरी साहब बहस का आगाज करें। Thank you, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, I rise today to speak on the resolution concerning the challenge of unemployment in Jammu and Kashmir, and also request this August House to resolve unanimously that the growing unemployment in the Union Territory be addressed as a top priority, thereby saving the future and the lives of thousands of unemployed youth of Indian Territory. Sir, मैं स्टैटिस्टिक्स से शुरू करूंगा। बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट 2024-25 अंडर मिशन युवा जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में है, दैट इज 6.7%, नियरली डबल द नेशनल एवरेज ऑफ 3.5। सर, इसमें जो यूथफुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इट इज अगेन इवन मोर कंसर्निंग एट 17.4%. compared to Pan India 10.2%. और इसमें जो वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज 28.6%. अब कुछ और रिपोर्ट्स की बात करूंगा सर यहाँ। लास्ट क्वार्टर ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2024, JNK youth unemployment at 32% was highest in the country.